Okay, so in the morning class, we began the topic of experimental stress analysis. Okay, so why we need it in the case of complex engineering problems, we use experimental technique where the analytical solution, or in some cases, the numerical solution is not possible. Eventually, complicated problems are always tested experimentally. Okay, in the design stage as well as after manufacturing the actual part. Okay, so there are several techniques for experimental stress analysis. These are just five. There are others also. Okay, so one of the technique is to use the strain gauge. So there are different type of strain gauges. As the name implies, a gauge that can measure the strain. Strain is the geometric deformation that can be measured. There's a technique called photoelasticity in which we use the specimen that is made up of birefringent transparent material, and after loading the material show two different refractive indices, and it shows different light pattern. From that, one can estimate the stresses that are being generated inside the material. So we discussed about the brittle coating, excitation, and thermoelastic stress analysis. Is a less common technique, but still like people use it. These are the types of strain gauges: mechanical, optical, acoustic, and electrical. Acoustical and electrical. So out of these, the extensometer is commonly used, and the electrical resistance strain gauge is commonly used. So this is one of the cheapest strain gauge. It is not super accurate, but it is widely used in the field. So this is the picture of the extensometer. If you perform testing on the universal testing machine, you will find these strain gauges there. These are the mechanical strain gauges. You transform the mechanical signal into the electrical signal, and later electrical signal converted into strain reading. So deflectometer and extensometer are the functionality or the functioning of the extensometer and the deflectometer are the same. They both use cantilever beam mechanism here somehow. So these are some important points. One of the most important point is that we cannot measure stress, we can measure strain. The maximum the stress region or the critical stress region usually in most of the cases lies on the surface of the object. So irrespective of the fact that we cannot install the strain gauge within the material, we can only record the strain on the surface of the object, and then later we transform the strain into stress by using the stress-strain relationship. So irrespective that we cannot install the strain gauges within the object or inside the object, it's okay, it's fine to measure the strain on the surface, because the surface strain and the stresses are more critical than the stresses that are being generated inside the object. Okay, so it is not actually a problem. Another problem is the surface represent a 2D field. So we install we record three types of strain, the epsilon XX, epsilon YY, and gamma XY. So we will learn in today's class that how we can measure these three types of strain using one type of strain gauge. So there is one more problem that we can measure strain over certain finite area, over certain finite region. We cannot measure strain at a single point. So that leads to error. How that error depends on the length that we will learn here. So this is my point of interest, and I am going to install a strain gauge of length L naught. There's some disturbance from someone's end. Can you hear me, guys? Rafe? Yes, sir. Zabardast. How is my voice quality? Am I audible? Yes, sir. Good. So, acha ji, assume that we are going to measure the strain that has constant strain at all points. Okay. वैसे तो हमें strain पता नहीं होता, तभी तो हमने strain gauge लगाया है.
ठीक है। लेकिन अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जिस सरफेस पे हम स्ट्रेन गेज लगा रहे हैं उस पे हर पॉइंट पे पॉइंट टू पॉइंट जो है वो स्ट्रेन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या है, के। ये हम अज्यूम कर रहे हैं, अगर हमें पहले से पता होता तो फिर हमें स्ट्रेन गेज लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू शो यू कि इस केस में एरर कितना होगा। ठीक है, तो हम स्ट्रेन को ये बेसिकली एल एक्स जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रेन गेज है। ठीक है, तो हम स्ट्रेन को एवरेज, तो स्ट्रेन गेज हमें कौन सी रीडिंग देगा, एवरेज रीडिंग देगा, पॉइंट स्ट्रेन बताएगा, क्या बताएगा, जो हम स्ट्रेन गेज लगाना जा रहे हैं, लगा रहे हैं, तो ओवर द रीजन स्ट्रेन गेज हमें एवरेज स्ट्रेन बताएगा। हमें मेजर करना है एक पॉइंट का, लेकिन हमें स्ट्रेन गेज रीडिंग बताएगा एल एक्स रीजन की, और ये कौन सी रीडिंग होगी, एवरेज। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को 0 से लेकर एल नॉट तक इंटीग्रेट किया। ये जो एक्सप्रेशन है स्ट्रेन फील्ड है ये, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स है ये, इसको हमने 0 से लेकर एल नॉट तक इंटीग्रेट किया ताकि हमारे पास टोटल स्ट्रेन आ जाए हर पॉइंट का, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। उसको हमने डिवाइड कर दिया एल नॉट से। Why we are dividing it L naught? To determine the average strain. This is the total strain of all points, and we are going to divide this total strain over the length L naught with L naught to determine the average value. ठीक है, तो इंटीग्रेट किया इस एक्सप्रेशन को और डिवाइड कर दिया L naught से, तो वी आर एंडिंग अप विथ K एवरेज वैल्यू। ओके, सो एरर किसके बराबर होगा, एरर बराबर होगा एवरेज स्ट्रेन that is being measured by the strain gauge. Strain gauge will always give you an average value of strain over its length. ठीक है, और हमें मेजर किस पॉइंट का करना है, एक्चुअली हमें मेजर करना है एग्जैक्ट पॉइंट का, इस मिडिल पॉइंट का, और उस पे x की वैल्यू कितनी होगी, L नॉट बाई 2। ठीक है, दिस वुड बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द स्ट्रेन दैट वी आर इंटेंडेड टू डिटरमाइन, and this is the average value of the strain that the strain gauge will give you. ठीक है, तो इन दोनों केसेस को हमने इनकी वैल्यूज प्लेस करी, तो वी एंड अप विद 0 एरर। तो इससे साबित ही होता है, इससे पता ये चलता है कि अगर हम किसी एक सरफेस, ऐसी सरफेस का स्ट्रेन मेजर करने जा रहे हैं जिसमें हर पॉइंट पे स्ट्रेन कांस्टेंट है, तो स्ट्रेन गेज आपको 0 एरर के साथ रीडिंग दे देगा। ठीक है, तो एवरेज स्ट्रेन वुड बी इक्वल टू द पॉइंट स्ट्रेन, एंड दैट कंप्लीटली मेक सेंस कि हर पॉइंट पे जब के है तो जिस पॉइंट पे निकालने जाना है उस पॉइंट पे भी वैल्यू के होगी, वो स्ट्रेन गेज दे देगा आपको। ठीक है, तो देयर वुड बी नो एरर। अच्छा जी, केस 2 देखते हैं। केस 2, सपोज द स्ट्रेन इज लीनियरली वेरिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू another point, either it is increasing or it is decreasing. ठीक है, it's a linear function of x. So again we will determine the average strain and we determine the point strain. ठीक, तो एवरेज स्ट्रेन क्यों निकाला है हमने, एवरेज स्ट्रेन इसीलिए निकाला है कि स्ट्रेन गेज हमें एवरेज स्ट्रेन की वैल्यू देगा। ठीक है, तो एवरेज स्ट्रेन माइनस पॉइंट स्ट्रेन, तो अगेन द वैल्यू इज the error is 0। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मैं आपको पेंट से जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक मिनट, लेट मी शो यू। So suppose this is the value of strain. It is varying from one point to another point. This is my surface, ठीक है, और उस पे स्ट्रेन की वैल्यू जो है वेरी कर रही है 0 से लेकर L नॉट तक, either it is increasing और इट इज डिक्रीजिंग। तो इस पूरी स्ट्रेन का एवरेज किसके बराबर होगा, एवरेज बराबर होगा मिडिल लाइन के। ऐसा ही है, इस पूरे फंक्शन का एवरेज कहां पे लाई करेगा, मिडिल पॉइंट पे सर, मिडिल पॉइंट पे, और वही मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। एक्स जो है L नॉट बाई 2 पे मेजर करना है ना हमने, तो इसीलिए इस केस में भी एरर कितना होगा, 0। तो स्ट्रेन गेज की लेंथ कुछ भी हो, जो एवरेज स्ट्रेन है वो स्ट्रेन पॉइंट स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा। सो आई विल एंड अप विद अ 0 एरर। नाउ इन केस 3, assume that the strain field
इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन ऑफ एक्स, सेकेंड ऑर्डर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक एक कर्व बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह की कोई स्ट्रेन फील्ड है, लेट से कर्व, ठीक है। तो अब इस सूरत में स्ट्रेन, जो एवरेज स्ट्रेन है वो मिडिल वाले स्ट्रेन के बराबर नहीं होगा। तो here, sorry, here it is, here. So I am repeating that this is an assumption because अगर मुझे पहले से ये स्ट्रेन फील्ड पता होती तो फिर मुझे स्ट्रेन गेज लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो ये एवरेज स्ट्रेन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेन गेज हमें एवरेज वैल्यू रिटर्न करेगा, मेजर करके बताएगा, ठीक है। तो खैर बहरहाल हमने इस फंक्शन को 0 से लेकर L0 तक इंटीग्रेट किया ताकि हमारे पास टोटल स्ट्रेन आ जाए और उसको डिवाइड कर दिया L0 से। सो वी एंड अप विद द एवरेज स्ट्रेन। तो एरर कितना, किसके बराबर होगा, एवरेज स्ट्रेन माइनस जिस पॉइंट पर हम स्ट्रेन निकालना चाह रहे हैं, पॉइंट स्ट्रेन। तो उसकी वैल्यू क्या है, x इक्वल टू L0/2 पे हम निकालना चाह रहे थे स्ट्रेन एक्चुअली, लेकिन हमें जाहिर सी बात है इतना छोटा सा स्ट्रेन गेज तो बना नहीं सकते हम, तो हमें एक थोड़ा सा रीजनेबल साइज का स्ट्रेन गेज लगाना होगा, ठीक है। तो हमने वो एवरेज हमें स्ट्रेन बताएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमें एरर बता देगा। अच्छा जी, ये एरर देखिए, ये एरर आ गया यहाँ पे, आप एरर देखिए, लेंथ से उसका क्या रिलेशनशिप है एरर का, डायरेक्ट है या जो है ना वो लेंथ के साथ एकदम अचानक बढ़ रहा है। सर डायरेक्टली विद अ स्क्वायर्ड, हाँ डायरेक्टली विद स्क्वायर, यानी कि अगर आप 1 मिलीमीटर के बजाय 2 मिलीमीटर का स्ट्रेन गेज लगाते हैं तो एरर जो है ना वो एकदम शूट करेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पे। अगर 2 mm के बजाय मैं 3 mm का स्ट्रेन गेज लगाता हूँ जो कि इटसेल्फ बहुत छोटा स्ट्रेन गेज है, तो एरर और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम एरर को कम करने के लिए क्या करें, स्ट्रेन गेज का साइज क्या होना चाहिए फिर, छोटे से छोटा हो सर। हाँ जी, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, ठीक है। यानी कि जो कंडक्टर की लेंथ है, हम एक कंडक्टर को जो है ना वो सरफेस के ऊपर, मैं दिखाता हूँ आपको फिगर यहाँ पे, एक मिनट। हम करते हैं कि एक कंडक्टर को जिस सरफेस पे स्ट्रेन निकालना है उस सरफेस के ऊपर कंडक्टर को मैं क्या करता हूँ, स्टिक कर देता हूँ किसी अच्छे एडेसिव से, सही है। एल्फी लगा दें आप, कोई समट बॉन्ड लगा दें आप, कुछ भी लगा दें, ऐसा एडेसिव हो जिसमें सरफेस डिफॉर्म हो रही है, उसके साथ साथ वो कंडक्टर भी डिफॉर्म हो रहा हो, तो इसमें चेंज ऑफ रेजिस्टेंस होगी। वो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस को मेजर करके उसको हम उससे हम स्ट्रेन निकालेंगे सरफेस का, ठीक है। दिस इज द होल आइडिया इज। तो हाँ जी बताएं, पूछें। सर यूजुअली कंडक्टर किस मटेरियल का होता है, क्योंकि ये भी तो इम्पैक्ट कर सकता है ना हमारे मटेरियल की बिल्कुल डिफॉर्मेशन बिल्कुल, वगैरह। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अभी मुझे एक मिनट मटेरियल का नाम याद करने दें। ये बना हुआ होता है कारमा मटेरियल होता है, एक एलॉय। ओके, उस मटेरियल का होता है क्योंकि उसकी रीजन ये है कि वो सबसे ज्यादा हमें सेंसिटिविटी देता है। ये जो अभी हम आज की टॉपिक में हम देखेंगे, इट विल गिव यू मोस्ट हायर चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट स्ट्रेन, ठीक है। ये जो कारमा मटेरियल है, तो एक मिनट यहाँ पे कहीं लिखा हुआ भी होगा मैंने, अच्छा ये बुक रीडिंग करेंगे वहां पे आपको ये मटेरियल का नाम मिल जाएगा। चैप्टर 6 और चैप्टर 7 है, उसके सारे टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है आपकी कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ लें तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। एग्जाम में नंबर तो आ ही जाते हैं। अभी आपने ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो आपको सभी को पता है कि सबके जो है 80+ 90+ नंबर आ जाएंगे, ठीक है। फील्ड में नो डाउट। सर एग्जाम ऑनलाइन का है क्या? नहीं क्योंकि अभी तक कुछ आया नहीं। अभी तक हमें भी नहीं पता, सही है, लेकिन मेरा नहीं लगता कि ऑनलाइन होगा, क्योंकि अभी तो रेगुलर क्लासेस जो है ना ओपन हो जाएंगी जो है ना वो 15-20 दिन से। तो आई डोंट थिंक सो इट वुड बी एन ऑनलाइन सेशन, बट ये कि सेशन मार्क्स अच्छे खासे के अच्छे ही होंगे। तो लेकिन असल चीज़ ये नहीं है, असल चीज़ ये है कि जो है ना आप जो फील्ड में काम करते हैं ना, उसमें जो आपकी 50%, मोर देन 50% जो आपका कॉन्फिडेंस होता है और जो स्पीकिंग पावर है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस जब आप करते हैं, तो वो उसमें मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन आपकी पर्सनैलिटी से पीछे जो है ना नॉलेज की होती है, ठीक है। तो नॉलेज बढ़ाएं यहाँ पे आप जो है ना, वो एग्जाम में तो नंबर थोड़े बहुत कम या ज़्यादा, सही है। जीपीए इज नॉट द रियल स्केल ऑफ एक्चुअल इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ द पर्सन और नॉलेज ऑफ द पर्सन, ठीक है। इसमें अच्छा खासा वेरिएशन होता है,
ठीक है, तो जो 3.5 जीपीए लेके आ रहा है वो हो सकता है 3.2 डिजर्व करता हो और उसकी आती 3.5, और ये भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट है जिसकी इंटेलेक्चुअलिटी और नॉलेज बहुत ज़्यादा है और वो 4 जीपीए डिजर्व करता है लेकिन उसकी 3.5 आ रही है, तो एनीथिंग अबव 3 इज इट्स गुड। ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलिए, ये तो एक फिलोसफिकल बातें हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो कंक्लूजन ये है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रेन गेज शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, अब ये देखें ये कन्वर्ट कैसे करते हैं। हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है ना वो किसके बराबर होती है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। ठीक है, अगर वायर की लेंथ ज्यादा होगी तो उस पीस ऑफ मटेरियल की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर क्रॉस सेक्शन जो है वो ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी के। ये रेजिस्टिविटी मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी कर रहा होता है। खैर बहरहाल इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके अभी सारी चीजों पे डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी भी लेंथ भी और एरिया पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे डी आर अपॉन आर हम जो है वो निकाल लेते हैं। सही है ना। अब हमें पता है पोसॉन रेशियो किसके बराबर होता है, नेगेटिव ट्रांसफर स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन। ठीक है, तो पोसॉन रेशियो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डी एफ माइनस डी नॉट अपॉन डी एफ, ये ट्रांसफर स्ट्रेन हो गया, डिवाइड कर दिया हमने एक्सियल स्ट्रेन से डी एल बाई एल, ये बेसिकली एक्सियल स्ट्रेन हो गया ना यहाँ, ये वाली चीज। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से डी एफ बाई डी नॉट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, डी ए बाई ए में। यहाँ से हमने डी ए बाई ए की वैल्यू निकाल ली और फिर हमने डी ए बाई डी ए की वैल्यू और डी एल बाई डी एल की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में प्लेस कर दी। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बन गया है। ठीक है, तो ये डी एल बाई एल किसके बराबर है, एक्सियल स्ट्रेन जिसको आप मेजर करने जा रहे हैं। ठीक है, हम ट्रांसफर स्ट्रेन मेजर नहीं कर रहे हैं, हम एक्सियल स्ट्रेन मेजर कर रहे हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, अच्छा जी, ये एक बात समझने वाली है कि ये जो म्यू है ये कंडक्टर का है, ये उस सरफेस का नहीं है जिस सरफेस पर हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ये कंडक्टर का म्यू है। ठीक है, यहाँ से हमने पूरे एक्सप्रेशन से एप्सिलॉन कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि गेज फैक्टर और सेंसिटिविटी, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट स्ट्रेन, ये जितना फैक्टर ज्यादा होगा किसी मटेरियल के लिए उतना ही वो मटेरियल आइडियल होगा स्ट्रेन गेज के लिए। ऐसा ही है, अगर कोई मटेरियल ज्यादा चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है पर यूनिट स्ट्रेन, तो व्हाट डू यू थिंक, दैट वुड बी एन आइडियल मटेरियल और नॉट? बैड मटेरियल फॉर नहीं? सेंसिटिव, अगर ज्यादा चेंज रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, भाई अगर स्केल बड़ा हो जाएगा सेंसिटिव। ना। हाँ, जितना स्केल बड़ा होगा उतनी आप स्मॉल मेजरमेंट मेजर कर सकते हैं ना। सही। यस सर, आइडियल होगा। ठीक है, ज्यादा डी आर चेंज ऑफ रेजिस्टेंस फॉरगेट अबाउट दिस टोटल आर। ठीक है, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट स्ट्रेन। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर की डायमेंशंस चेंज होने पे वो ज्यादा चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो दैट मटेरियल इज एन आइडियल मटेरियल टू बी यूज एज अ स्ट्रेन गेज मटेरियल, टू बी यूज इन द स्ट्रेन गेज। ठीक है, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, उससे ज्यादा हम स्मॉल मेजरमेंट एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये सेंसिटिविटी ऑफ द मटेरियल हो गया, सेंसिटिविटी ऑफ द गेज हो गया। ठीक है, तो ऑन द राइट साइड, अच्छा ये जो है ना ये फिक्स होती है, ये मटेरियल्स के लिए ना, मटेरियल टू मटेरियल फिक्स होती है। अगर आप सर्च करेंगे ना सेंसिटिविटी ऑफ द स्ट्रेट गेज तो आपको एक गूगल पे जो है ना एक चार्ट मिल जाएगा, तो वहां से आप जो है ना वो चेक कर सकते हैं। मुझे एक मिनट दीजिएगा, एक कॉल आ रही है, मैं उसको कैंसिल कर दूं।
सो आई एम बैक। अच्छा जी, तो अब बात ये हो रही थी कि हमें जो है ना वो कंडक्टर की जो स्ट्रेन गेज की लेंथ है वो कम रखनी है, लेकिन हमें कंडक्टर की लेंथ ज्यादा से ज्यादा चाहिए, क्योंकि कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, और उतनी ज्यादा चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वो कंडक्टर मुझे ऑफर कर सकता है। ठीक है, जितना छोटा कंडक्टर होगा मुझे चेंज ऑफ रेजिस्टेंस भी उतनी कम मिलेगी। ठीक है, तो कंडक्टर की लेंथ हमने ज्यादा रखनी है और स्ट्रेन गेज की लेंथ कम रखनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट इस्तेमाल करते हैं, हम कंडक्टर को बाउंड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि कंडक्टर की लेंथ तो ज्यादा रहती है और स्ट्रेन गेज की लेंथ वो जो है वो कम हो जाती है। अब इस पॉइंट के मुझे स्ट्रेन पता चलेगा, एवरेज स्ट्रेन ओवर द लेंथ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कैन यू हियर मी? Yes, Yes, sir. you can hear me guys. So this is तो दो तरह की अरेंजमेंट्स हैं, बाउंडेड वायर है और बाउंडेड फॉइल है। तो वायर में राउंड वायर होता है जिसको आप जो है ना वो कॉइल की सूरत में जो है वो दिखा देते हैं, राउंड क्रॉस सेक्शन होता है। फॉइल के केस में क्या करते हैं, ये पहले एक थिन शीट होती है, थिन शीट पे जो है ना वो पंच करके ये जो फॉइल वाला बाउंडेड एरिया है, कॉइल वाला एरिया, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो बाउंडेड फॉइल बन जाती है। ठीक है, इसमें क्रॉस सेक्शन जो है ना वो रेक्टेंगुलर होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंगली, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से ये बाउंडेड फॉइल जो है ना ये ज्यादा इजीली अवेलेबल टेक्निक है। इससे इजीली जो है ना वो कॉइल बन सकता है। सर एक सवाल था यहाँ पर। हाँ पूछे। जो बाउंडेड वायर वाला केस है हमारे पास, जब सिर्फ हमारे पास वन सेगमेंट था वायर का, तो अगर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो वो एक सेगमेंट स्ट्रेच हो रहा है, हमारे पास के अंदर रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। लेकिन हमने इस तरीके से जो इसको अरेंज किया है, इसमें तो जितने भी सेगमेंट्स हैं वो सारे अलग अलग स्ट्रेच होंगे, तो वो ज्यादा बढ़ा के नहीं दिखाएगा स्ट्रेन हमें कि तो सब अलग अलग। बिल्कुल, हम यही तो चाह रहे हैं बेटा, हम चाह ये रहे हैं कि कंडक्टर अगर हम छोटा लगाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस कम होगी, तो वो मुझे चेंज ऑफ रेजिस्टेंस भी कम ऑफर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बड़ा कंडक्टर लगाते हैं तो वो एवरेज स्ट्रेन बताएगा, जिसकी वजह से पॉइंट स्ट्रेन और एवरेज स्ट्रेन की वैल्यूज में डिफरेंस होगा, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में चेक किया था। सही सही सही। तो हम क्या करते हैं कि कंडक्टर को कॉइल की सूरत में कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या है कि एवरेज स्ट्रेन, गेज लेंथ कम हो गई और कंडक्टर की लेंथ तो ज्यादा ही है अभी भी। ठीक है, तो एरर जो है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा सेंसिटिव आपके पास जो है ना वो कंडक्टर बन सकता है इस तरह से। ठीक है जनाब, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब एक और नई प्रॉब्लम है। ठीक है, इंजीनियर का काम ही प्रॉब्लम से निपटना है। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, हर चीज पे जो है ना कहीं आके लिमिटेशंस हैं, और ये भी जो है ना वो बनाने वाले की कुदरत है कि उसने जो है ना वो हर चीज में ला के कोई ना कोई फ्लॉज रखे हैं, कोई ना कोई जो है लिमिटेशंस रखी हैं। सही है, क्योंकि इवेंचुअली जो है ना लोगों को रियलाइज हो सके देयर इज समथिंग दैट हिमसेल्फ इज परफेक्ट। तो स्ट्रेन गेज में अब क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि हमें मेजर कौन सा स्ट्रेन करना है, एप्सिलॉन ए मेजर करना है कि एप्सिलॉन टी मेजर करना है? हम इस डायरेक्शन में अगर कंडक्टर लगा रहे हैं, ए मेजर करना है। ए मेजर करना है हमें, एग्जैक्टली एक्सियल स्ट्रेन मेजर कर रहे हैं, लेकिन जिस सरफेस के ऊपर आप लगा रहे हैं उसमें ट्रांसफर स्ट्रेन भी तो है, उसकी वजह से भी तो कंडक्टर की डायमेंशन चेंज होंगी। ठीक है, तो ये कंडक्टर या स्ट्रेन गेज जो है ये ट्रांसवर्स स्ट्रेन को भी सेंस करेगा। मेजर हमने करना है एप्सिलॉन ए, लेकिन इसके अंदर ट्रांसवर्स स्ट्रेन, और ये स्पेसिमेन के मटेरियल की वजह से जो ट्रांसफर स्ट्रेन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पोसॉन इफेक्ट। यहाँ पे ये जो पोसॉन इफेक्ट है ये कंडक्टर का पोसॉन इफेक्ट है, या पॉइजन इफेक्ट जिसको आप कहते हैं। अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो स्पेसिमेन के पॉइजन इफेक्ट की बात होगी। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज द स्पेसिमेन्स पॉइजन रेशियो या पॉइजन इफेक्ट। ठीक है, पोसॉन रेशियो या पोसॉन इफेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, थ्योरी में क्या है कि जो डेल्टा आर अपॉन आर है वो किसकी वजह से, सेंसिटिविटी ऑफ द स्ट्रेन गेज इन द एक्सियल डायरेक्शन मल्टीप्लाई विद द एक्सियल स्ट्रेन प्लस sensitivity of the conductor in the transverse direction multiply by the transverse strain, and plus sensitivity of the conductor in the shear direction multiply by the shear strain.
अच्छा, ये चीज शेयर की वजह से जो है ना रेजिस्टेंस चेंज आता नहीं है इतना, सही है, क्योंकि शेयर की वजह से शेप चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, ये लेंथ और डायमीटर चेंज होने की वजह से हो रही है, ठीक है। अगर किसी चीज को मैं थोड़ा सा डिफॉर्म करके उसकी शेप थोड़ी सी चेंज कर दूं, तो आई विल नॉट गेट गुड चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, एक राउंड आपके पास कंडक्टर है, उसको आप जरा फ्लैटन कर दें, तो यू विल नॉट फाइंड एनी चेंज डिफरेंस, ठीक है। तो ये वही वाली बात है कि मैं ये वाला क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का इस्तेमाल करूंगी, ये वाला, ठीक है। तो शेप की चेंज होने की वजह से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सही है। असल चीज है कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया अगर दोनों का बराबर है तो इट्स फाइन, मैं कोई सी भी शेप इस्तेमाल करूं, सही है। तो शेयरिंग की वजह से शेप चेंज होती है, ठीक है। तो यू विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस इन द चेंज ऑफ द रेजिस्टेंस। सो एनी हाउ, तो जो डेल्टा आर अपॉन आर है, दैट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेन इन द एक्सियल डायरेक्शन एंड इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमने KT का फैक्टर निकाल लिया, KT इज द सेंसिटिविटी फैक्टर ट्रांसवर्स वर्सेस एक्सियल। अब ये KT ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए? सर कम होना चाहिए, एक्चुअल ज्यादा होगा। या कम होना चाहिए। हमें ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना है कि जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन के स्ट्रेन को कम से कम सेंस करे। सर यहाँ पर एक मेरा क्यूरियोसिटी है कि हम अगर हमें सिर्फ एक्सियल निकालना होता है तो हम पूरे कंडक्टर को क्यों चिपका देते हैं? हम सिर्फ एजेस को अगर चिपकाएं तो वो एक ही डायरेक्शन में बस खींचेगा और वो उससे सेंस नहीं कर सकते हम? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये वाले जो कंडक्टर आप कह रहे हैं एच पे जो है ना स्टिक कर देते हैं, इट्स क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिल्कुल। इसका भी मैं कोई जवाब भी नहीं दे सकता। आई डोंट नो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है लेकिन। ओके। तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि सर अगर जैसे बीच में से हमने जब चिपकाया तो जाहिर है ट्रांसफर इज गोइंग टू अफेक्ट इट, लेकिन अगर हम एजेस से सिर्फ चिपकाएं तो जितना स्ट्रेन आ रहा है वो सिर्फ एजेस, उसको एक लेंथ चेंज होगी आई गेस, और ट्रांसफर इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट इट दैट मच। हाँ, नहीं, क्वेश्चन इज रियली गुड, वेरी। तो हाँ, हो सकता है एजेस पे आप चिपकाएं, लेकिन बात ये है कि जो है ना, जो क्रिटिकल एरियाज हैं वो हम डिसाइड नहीं करते हैं, वो तो डिजाइन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम तो यहाँ पे एक जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं। जो क्रिटिकल स्ट्रेस का रीजन है, दैट यू विल नॉट डिफाइन। ये देखिए, एक क्वेश्चन ये भी था ना कि स्ट्रेन गेज आप किस जगह पे लगाएं, तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये तो एक्चुअल डिजाइन या ऑब्जेक्ट की लोडिंग और उसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपने किस जगह पे, आप हर पॉइंट पे तो स्ट्रेन गेज नहीं लगाते हैं, सही है। या मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है आपके क्वेश्चन का, खैर। ओके, दिस ओके। अच्छा जी, KT, we want KT should be small as possible, ठीक है। A conductor should least sense the transverse strain compared to the axial strain, क्योंकि हमें axial strain मेजर करना है, हमें ट्रांसफर स्ट्रेन उसका अफेक्ट जो है ना वो बिला वजह उसकी वजह से चेंज ऑफ रेजिस्टेंस हो रही है, ठीक है। वी डोंट वांट टू मेजर, बट वो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस मटेरियल से हम, जिस कंडक्टर से हम स्ट्रेन गेज बनाने जा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर है उसको अपने पास कैलिब्रेट करने के लिए अपने पास एक मटेरियल पे लगाता है। तो उसको एप्सिलॉन ए भी पहले से पता होता है, वो एनालिटिकल टेक्निक से पता हो या न्यूमेरिकल सोर्स से पता हो या एक और स्ट्रेन गेज से पता हो उसको, लेकिन बहरहाल उसको एक ऐसी सरफेस पे लगा के कैलिब्रेट करता है जिसका स्ट्रेन उसको पहले से पता होता है, और उसमें उसको साथ में SG भी पता होता है, सेंसिटिविटी ऑफ द स्ट्रेन गेज, ठीक है। ये जो SG है इसमें ये दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं। ये गेज की सेंसिटिविटी है, ठीक है, दैट इंक्लूड्स बोथ अफेक्ट, ठीक है। तो अब ये कैलिब्रेट करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरर, तो वो उसका तरीका बता रहे हैं, ये थ्योरी में है, और ये एक्चुअली जो स्ट्रेन गेज मैन्युफैक्चरर है वो ये काम करता है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दोनों चीजें पता है, एक्सियल स्ट्रेन भी पता है, और हमें ये नॉन स्पेसिमेन है तो उस स्पेसिमेन का पोसॉन रेशियो भी हमें पता है, ठीक है। तो ये बोथ द थिंग्स आर नोन, ठीक है। जो चीज अननोन है वो निकालने जाना है, और दैट इज KT, ठीक है। तो हमें ट्रांसवर्स सेंसिटिविटी फैक्टर निकालना है बेसिकली। तो खैर बहरहाल इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं, लेफ्ट और राइट की थ्योरेटिकल पार्ट और द थिंग्स दैट वी नो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड
के स्ट्रेन गेज को बनाने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा है मैन्युफैक्चरर, जिसमें उसको दो चीज़ें पता हैं पहले से। तो खैर बहरहाल यहाँ से आपके पास SG आ गया, ठीक है। SG आने के बाद आप क्या निकालेंगे यहाँ से, ट्रांसफर सेंसिटिविटी फैक्टर, ठीक है। तो एप्सिलॉन A आ गया। ये एप्सिलॉन A वो वाला है जिसको मेजर करना था, जो एक्चुअली मेजर हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रेफरेंस में से माइनस कर देंगे एरर निकालने के लिए, ठीक है। तो इवेंचुअली जो कंक्लूजन है वो यहाँ पे आ गया। कंक्लूजन क्या है कि ये दिस इज द एक्चुअल स्ट्रेन और दिस इज व्हाट इज बीइंग मेजर्ड बाय द स्ट्रेन गेज, ठीक है। ऐसे ही है ना, एप्सिलॉन A मैंने आपको बताया था ना किसी और सोर्स से हमें नोन है, और ये एप्सिलॉन A वो वाला एप्सिलॉन A है जो कि स्ट्रेन गेज मेजर करेगा, ठीक है, सेंस करेगा या मेजर करेगा स्ट्रेन गेज। तो ये एरर देखें, इवेंचुअली ये एरर किस किस पे डिपेंडेंट है, किस चीज पे डिपेंडेंट है। हाँ जी, KT की वैल्यू बताएं। KT की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? इस एरर को कम होनी चाहिए ऑब्वियसली, यहां से भी पता चल रहा है, यहां से भी पता चल रहा है, ठीक है। इन दोनों ही जगहों से वजह से पता चल रहा है कि KT शुड बी स्मॉलर, एज स्मॉल एज पॉसिबल। फिर उसके बाद एक ऑब्वियस ही चीज है कि एप्सिलॉन T जिसमें एक्चुअली ट्रांसफर स्ट्रेन कम होगा उसमें एरर भी कम होगा, ठीक है। लेकिन खैर ये बहरहाल हमारी चीज कंट्रोल में नहीं है, ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो एरर हम उसी तरह से कम कर सकते हैं कि हमारे पास जो है KT की वैल्यू कम से कम हो, ठीक है। जो मटेरियल की जो KT की वैल्यू है दैट शुड बी स्मॉल एज पॉसिबल। तो इस केस में जो है ना वो एक कारमा मटेरियल है जो इस्तेमाल होता है, जो कि जिसमें जो है ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा जी, एक और नई चीज आ गई, प्रॉब्लम एक और नया आया है, हम डेल्टा R मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली। हम चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, स्मॉल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा ना, ओम्स मीटर पढ़ा होगा पहले, आपने याद होगा कि हम एक बहुत हैवी रेजिस्टेंस जो है ना वो पैरेलल में लगाते हैं, उससे हम जो है वो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। उस केस में जो है ना वो डेल्टा R जो है ना वो सेंसिटिवली मेजर नहीं किया जा सकता। हम डेल्टा R नहीं मेजर करते, हम डेल्टा E मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर उसको हम चेंज ऑफ रेजिस्टेंस के सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो हम डेल्टा R मेजर करने के बजाय हम डेल्टा E का सिग्नल मेजर करते हैं और उसको फिर हम डेल्टा R में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा E के सिग्नल मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरह के सर्किट्स हैं, एक है पोटेंशियोमीटर, नाम सुना होगा आपने पहले से, एंड अनदर वन इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। डिड यू हियर दीस नेम बिफोर? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेस हैं, अगर किसी एक रेजिस्टेंस में चेंज होगा तो डेल्टा E इसके अक्रॉस चेंज होगा, वी विल मेजर दैट चेंज ऑफ वोल्टेज। सेम गोज विद व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में भी ऐसा ही है कि हम इन R1, R2, R3 और R4 इन चारों में से किसी एक में भी चेंज ऑफ रेजिस्टेंस होगा तो डेल्टा E चेंज होगा इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में, एंड वी विल मेजर दैट डेल्टा E, ठीक है। अब इसको भी मेजर करने के दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट रीड आउट, एक और है नल बैलेंस, ठीक है। दीज आर द टू मेथड्स फॉर दैट। चलिए पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोर कॉमनली यूज्ड। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में VAB ऐसे निकाल सकते हैं, यस और नो? VAB इज डिवाइडिंग बिटवीन VAC ना, और VAC किसके बराबर है? V के बराबर है भाई, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में ना, तो यहाँ पे वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा ना, 1/R1 इक्वल्स टू, सही सही, ठीक है। तो नहीं, ये तो सीरीज में ना, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। खैर बहरहाल यहाँ पे जो है ना वो R1, हाँ सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होगा ना। तो VAB can be measured, VAB can be measured like that, and VAD can be determined using this formula R4, ठीक है। तो हमें निकालना कौन सा है, VAD निकालना है, VAB निकालना है, मेजर कौन सा सिग्नल करना है हमें? सर VAD करना है, हमें VBD करना है एक्चुअली, सॉरी VBD, सॉरी जो डेल्टा E के अक्रॉस है,
बिल्कुल ना वी ए भी मेजर करना है ना ही वी ए डी मेजर करना है, हमें तो एक्चुअली करना है वी बी डी मेजर, ठीक है, ये वाला सिग्नल मेजर करना है। तो इस सिग्नल को मेजर करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सर्किट को इस्तेमाल करने से पहले हम हमेशा सर्किट को बैलेंस करते हैं। बैलेंस इस तरह से करते हैं कि ये वोल्टेज जो है ना वो जीरो हो जाए, पहला वाला वोल्टेज, स्टार्टिंग वोल्टेज जीरो हो जाए। उसके बाद इन R1, R2, R3, R4 इनमें से किसी एक में भी स्ट्रेन गेज होगा तो यहाँ पे सर्किट अनबैलेंस हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इन चारों में से किसी एक जगह स्ट्रेन गेज है और बाकी तीन रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले दूसरी काउंटर रेजिस्टेंसेस को इस तरह से मेंटेन करेंगे कि ये वाला जो वोल्टेज है इनिशियली जीरो हो जाए। दैट इज कॉल्ड एज अ जीरो बैलेंस सर्किट, ठीक है। अच्छा जी, बैलेंस सर्किट जब ये चीज जीरो हो गई तो ये वाला फैक्टर इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो फिर हमें E प्लस ई डेल्टा ई निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर द चेंज इन रेजिस्टेंस वी कैन यूज दिस थिंग, ठीक है। हर जगह एक रेजिस्टेंस ऐड कर दी ना मैंने, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ऐड कर दी, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस ऐड कर दी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे E जो है वो जीरो है तो हमारे पास डायरेक्टली डेल्टा E आ जाएगा, ठीक है। वी कैन एंड अप विद डायरेक्टली डेल्टा E। और इसमें ये जो जब आप एक्स को एक्सपेंड करेंगे इसमें हम जो है ना ये चीज जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो द फाइनल फार्मूला वुड बी लाइक दैट, दिस वुड बी द फाइनल फार्मूला, जिसमें E जो है वो पहले से जीरो कर दिया था हमने, ठीक है। अब इसमें चार टर्म्स हैं, 1 2 3 4। कौन सी रेजिस्टेंसेस जो है ना वो पॉजिटिव के साथ हैं? 1 and 3। 1 and 3। तो हम स्ट्रेन गेज जो है वो यूज करेंगे R1 और R3 ऐसी जगहों पे जहां पे पॉजिटिव स्ट्रेन है। हमारी यहाँ पे इंजीनियरिंग जजमेंट काम आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिव स्ट्रेन से कंडक्टर की लेंथ बढ़ेगी, ऐसा ही होगा। यस सर। और कंडक्टर की लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी या नेगेटिव होगी? डेल्टा आर कितना होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो R1 और R3 को हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रेन गेज की जगह अगर हमें पॉजिटिव स्ट्रेन मेजर करना है, और अगर हमें कंप्रेसिव स्ट्रेन मेजर करना है, नेगेटिव स्ट्रेन, तो हम ऐसी जगहों पे R2 और R4 की जगह स्ट्रेन गेज लगाएंगे। तो जब कंडक्टर की लेंथ कम होगी और डायामीटर बढ़ेगा तो डेल्टा आर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव होगा, और ये वाला नेगेटिव विद द डेल्टा आर नेगेटिव वुड बिकम पॉजिटिव, ठीक है। तो हम ये वाला फार्मूला हम उसमें ये सारी रेजिस्टेंसेस ऐड हो सकती हैं अगर ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो ये उस वक्त काम आएगा जब हम चारों जगह जो है स्ट्रेन गेज इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, वहां से भी चीजें क्लियर होंगी। मैं अभी थोड़ा क्विकली लेके चल रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछे मुझसे, अभी क्लियर कर लें। आपको डायरेक्टली फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, आपको डेरिवेशन नहीं करनी होगी, लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो है ना ये फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, ये पाकिस्तान में भी इस्तेमाल। रियल लाइफ में जब हम ये यूज कर रहे होंगे फॉर एग्जांपल, तो अब हमें तो एक फौरन से पता नहीं चलेगा ना कि इस पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेन है वो कंप्रेसिव हो रहा है कुछ भी। तो हम पहले एक आर्बिट्री टेस्ट करके देखेंगे और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो फिर अपोज करके दूसरे वाले रेजिस्टेंस लगाएंगे, ऐसा करते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे केसेस में इंजीनियरिंग जजमेंट के थ्रू आपको पता चल जाता है, बिल्कुल पता चल जाता है कि यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रेन होगा कि नेगेटिव होगा। जैसे अगर आप प्रेशर सीएनजी सिलेंडर के आउटर उस पर लगाएं स्ट्रेन गेज, ये टेस्ट जो है ना वो आप अपनी गाड़ी में भी कर सकते हैं, और ये इक्विपमेंट कोई ज्यादा महंगा नहीं होता है, सही है।
बल्कि आप सही। इससे एक 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 जो है ना वो डिवाइस बना लें और उसको बना के बेचना शुरू कर दें एज ए एंटरप्रेन्योर आइडिया। ठीक है, क्या एंटरप्रेन्योर आइडिया कि भाई आपने सीएनजी सिलेंडर लिया अपनी गाड़ी में, उसमें आपने स्ट्रेन गेज लगा दिया उसकी सरफेस के ऊपर। अब मुझे पता है ना जब गैस डलवाएंगे तो हुप डायरेक्शन में जो है ना वो डायमीटर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा, तो पॉजिटिव स्ट्रेन होगा। ठीक है, उस स्ट्रेन को मेजर करके आप प्रेशर बता सकते हैं सिलेंडर के अंदर सही, का। बिल्कुल सही। लिटरली ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई एंटरप्रेन्योर का आइडिया चाहिए तो ये एंटरप्रेन्योर का आइडिया ले ले। ये आराम से डिवाइस जो है 4-4.5 हजार रुपए में बन जानी चाहिए, जिसको आप 8-10 हजार रुपए में बेच सकते हैं। स्ट्रेन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज लें, उसको सीएनजी सिलेंडर के ऊपर आप लगा दें, स्टिक कर दें। फिर उसके बाद जो है ना उसमें से जो सिग्नल आए इस सिग्नल को आप डेल्टा आर में कन्वर्ट करके थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। वो आपको प्रेशर की रीडिंग में ये वैल्यू कन्वर्ट कर सकता है गाड़ी के अंदर ना। और उसमें आपको ये बता सकते हैं कि आप प्रेशर को या लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं, कुछ आप जो है ना वो इनोवेशन करें, उसमें रेड और ग्रीन एलईडी लगा दें। ठीक है, तो आप वो बिलिंग करना शुरू कर दें कि ये जो है ना एक्सेसिव प्रेशर है। ठीक है, तो दैट कैन बी डन इजीली सेफ्टी साइड पे ना। तो इस तरह की चीज़ों में जो है ना वो सेंस कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना वो नेगेटिव स्ट्रेन है कि पॉजिटिव स्ट्रेन है। अच्छा खैर, यहाँ पे थोड़ी सी मैनिपुलेशन करेंगे। तो वी विल एंड अप विद द हाफ ब्रिज, क्वार्टर ब्रिज, हाफ ब्रिज एंड फुल ब्रिज। क्वार्टर ब्रिज ये है कि हम एक जगह स्ट्रेन इस्तेमाल करें, स्ट्रेन गेज। और फुल ब्रिज ये है कि हम R1, R2, R3, R4 इन चारों जगहों पे स्ट्रेन गेज इस्तेमाल करें। ठीक है, तो वो अभी हम देखते हैं, केसेस देखते हैं सारे के सारे यहाँ पे ना नीचे। ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें मुझे लग रहा है एक क्लास और लेनी पड़ेगी आप लोगों को, ये केसेस खत्म नहीं होंगे। दो टॉपिक आप लोगों के बाकी ना, हाइपर इलास्टिसिटी और विस्को इलास्टिसिटी का टॉपिक बाकी है। ठीक है, वो अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं आई है, आप लोगों के अपलोड भी नहीं हुई है। तो इसको नेक्स्ट वीक में कवर करते हैं फिर। सर नेक्स्ट वीक 12:05 के बाद कंटिन्यू कर लेंगे हम 1 बजे तक। ठीक है, चलें, सही है, डन हो गया। अभी आप आज की क्लास को यहीं पे टर्मिनेट कर रहे हैं। एक काम कीजिएगा, बुक रीडिंग जरूर कीजिएगा। सही है, और ये मेरी जो ओके सर। हैंड रिटन है इनको जरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको काफी कंटेंट समझ में आ जाएगा, तो फिर डिस्कशन करने में आसानी होगी। मैं थोड़ा जल्दी निकाल सकता हूँ टॉपिक। सर बॉयज रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आज का जो सेशन है वो आप अपलोड कर दिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों अपलोड करूंगा मैं। मुझे अभी अटेंडेंस दे दें क्योंकि इस एक्स्ट्रा क्लास को मैं काउंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जरा आप लोग सीट नंबर से टाइप कीजिएगा, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे डेटा प्रोसेस करने में मसला होगा फिर। सही है, ये भी नहीं चाहिए। अगर किसी ने अटेंडेंस लिखना है तो 4 दफा जो है ना वो रोल नंबर अलग अलग लिखें यहाँ पे। राफे, इन रोल नंबर्स को यहीं पे 4 दफा अलग अलग लिख दें, जरा टाइप कर लो। ओके सर। दानिश, आप जरा सीट नंबर अपना टाइप कर दें दोबारा। देन हाँ दानिश, ये आपने फिर दोबारा मिस्टेक की। वैसे मुझे सीट नंबर चाहिए इस फॉर्म में, तो ये मुझे जो है ना ये डेटा प्रोसेस करने में मसला होगा। Please type your seat number if someone has not typed the seat number yet. सर 4 बॉयज हैं वो FIP मीटिंग पे गए थे, उनका भी मैंने लिख दिया। ठीक है, चलें जी। आप लोग चेकआउट कर दें, मेरी एक और मीटिंग है इसके फौरन बाद में। प्लीज यू मे चेक आउट फ्रॉम द क्लास। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। जिसने सीट नंबर लिखना है लिख दें, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। डन। ओके गाइस, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।